السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی آپ کہہ لیں قدیم اور طاقتور حکمران کی کہانی پر بات کرنے والے ہیں۔ جی، ایک ایسا نام جو اکثر سننے میں آتا ہے، نمرود۔ بالکل، نمرود، جس کا تکبر، جس کی طاقت اور پھر اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کا ٹکراؤ، یہ ایمان اور کفر کی ایک بڑی کلاسک داستان ہے۔ جی ہاں، اور جو تفصیلات آج ہم زیر بحث لائیں گے وہ خاص طور پر قصص الاولیاء نامی ایک یوٹیوب چینل کی ویڈیو کے ٹرانسکرپٹ سے لی گئی ہیں۔ اچھا، تو یہ قصص والی روایت ہے، یعنی انبیاء اور اولیاء کے واقعات پر مبنی۔ بالکل، یہ ذریعہ ہمیں نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو واقعات ہیں ان کی کافی تفصیل بتاتا ہے اپنے انداز میں۔ تو آج ہم اسی ٹرانسکرپٹ کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ بادشاہ جو بابل کا حکمران تھا، جی، بیبلون۔ ہاں، بیبلون، وہ اپنی طاقت کے نشے میں کہاں تک چلا گیا، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرنے والی بات ہے۔ جی، یہ اصل میں انسانی تکبر اور پھر اللہ کی قدرت کے درمیان جو ٹکراؤ ہے نا، اس کی ایک بڑی واضح مثال ملتی ہے اس قصے میں۔ صحیح۔ اور ایک دلچسپ بات یہ بھی بتائی جاتی ہے کچھ روایتوں میں کہ تاریخ میں 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہیں پوری دنیا پر حکومت ملی۔ اوہ، اچھا، کون کون؟ ان میں 2 تو اللہ کو ماننے والے تھے، یعنی مومن تھے، حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام۔ جی۔ اور 2 کافر تھے، ایک تو بخت نصر جس کا ذکر بھی آتا ہے، اور دوسرا یہی نمرود۔ تو آج ہماری گفتگو نمرود پر مرکوز رہے گی۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس ذریعے کے مطابق دیکھتے ہیں کہ یہ نمرود تھا کون، اس کا پس منظر کیا تھا۔ دیکھیں، یہ ٹرانسکرپٹ ہمیں بتاتا ہے کہ نمرود، جیسا آپ نے کہا، بابل یعنی قدیم بیبلون کا حکمران تھا، اور اس کا نسب بھی بتایا گیا ہے، نمرود بن کانان بن کوش بن سام بن نوح کی نسل سے۔ جی، نوح کی نسل سے۔ اور ایک اہم بات جو یہ ذریعہ بتاتا ہے وہ یہ کہ شروع میں اسے یہ بادشاہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ملی تھی۔ اچھا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ جی، اور اس نے کوئی تھوڑا عرصہ نہیں، تقریباً 400 سال حکومت کی۔ 400 سال، یہ تو بہت لمبا عرصہ ہے۔ لیکن پھر اللہ کی دیوی طاقت کے باوجود یہ ظلم اور کفر کی طرف کیسے چلا گیا؟ ذریعہ اس بارے میں کچھ کہتا ہے؟ ذریعہ واضح کرتا ہے کہ وہ بہت ظالم اور جابر بادشاہ بن گیا، اور اس کے دور میں بت پرستی بہت عام ہو گئی۔ اچھا۔ لوگ نہ صرف اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر پوجتے تھے، بلکہ ذریعہ تو یہ کہتا ہے کہ وہ نمرود کو بھی معاذ اللہ اپنا رب ماننے لگے تھے، اس کی پوجا کرتے تھے۔ یعنی صرف بت نہیں بلکہ بادشاہ خود بھی ایک طرح سے خدا بن بیٹھا تھا لوگوں کے لیے۔ جی، اور ذریعہ یہ بھی کہتا ہے کہ نمرود نے خود بھی باقاعدہ خدائی کا دعویٰ کیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ میری عبادت کرو۔ استغفر اللہ۔ تو یہ وہ ماحول تھا شرک اور تکبر کا، جس میں پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ تو اس سارے کفر و شرک کے اندھیرے میں حضرت ابراہیم کی آمد ہوتی ہے۔ ذریعہ ان کی حیثیت کو کیسے بیان کرتا ہے؟ وہ اکیلے تھے؟ ذریعہ کہتا ہے کہ اس پورے معاشرے میں حضرت ابراہیم وہ واحد ہستی تھے جو اللہ کی وحدانیت پر پختہ ایمان رکھتے تھے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اور انہوں نے پھر اپنی قوم کو دعوت دی ہوگی؟ جی بالکل، انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ بے جان بت ہیں، ان کو چھوڑو اور اللہ واحد کی عبادت کرو۔ اور اسی سلسلے میں وہ بت توڑنے والا مشہور واقعہ پیش آیا ہے نا؟ جی ہاں، حضرت ابراہیم نے سوچا کہ ان جھوٹے خداؤں کی حقیقت اپنی قوم پر واضح کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ ذریعہ کیا کہتا ہے؟ ذریعہ کے مطابق ایک دن جب ساری قوم کسی تہوار کے لیے شہر سے باہر گئی ہوئی تھی، تو حضرت ابراہیم ان کے بڑے بت خانے میں گئے۔ وہاں انہوں نے کلاڑی لی اور جتنے چھوٹے بت تھے سب کو توڑ پھوڑ دیا۔ سب کو توڑ دیا؟ جی، سوائے سب سے بڑے بت کے، اسے چھوڑ دیا، اور وہ کلہاڑی اسی بڑے بت کے کندھے پر رکھ دی۔ اچھا، یہ تو ایک طرح کا طنز تھا یا ایک خاموش سوال تھا ان کے لیے؟ بالکل، ایک پیغام تھا کہ سوچو، جب قوم واپس آئی تو کیا ہوا ہوگا۔ ظاہر ہے غصے میں آ گئے ہوں گے اپنے خداؤں کا یہ حال دیکھ کر۔ بہت سخت غصے میں آئے، اور فوراً ان کا دھیان حضرت ابراہیم کی طرف گیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہی ایک شخص ہے جو ہمیشہ ان بتوں کے خلاف بولتا ہے۔ تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کام انہی کا ہے۔ جی، وہ سمجھ گئے اور سیدھا نمرود کے پاس پہنچ گئے شکایت لے کر۔ اور نمرود، وہ تو پہلے ہی حضرت ابراہیم کی دعوت سے خوش نہیں ہوگا، اس کا کیا رد عمل تھا؟ ذریعہ کہتا ہے کہ نمرود تو غضبناک ہو گیا، آگ بگولا ہو گیا، اور اس نے فوراً حکم دیا کہ ابراہیم کو زندہ آگ میں جلا دیا جائے۔
जिंदा जलाने का हुक्म? जी, और इस हुक्म पर अमल करने के लिए जरिया बताता है कि एक बहुत बड़ा मैदान चुना गया। वहां लकड़ियों का एक पहाड़ जमा किया गया अच्छा। और फिर उसमें आग लगाई गई। इतनी शदीद आग थी कि कहते हैं शोले आसमान तक जा रहे थे और तपिश इतनी ज्यादा थी कि कोई करीब भी नहीं फटक सकता था। अल्लाहु अकबर, ये तो बड़ी हौलनाक तैयारी थी। फिर हजरत इब्राहिम को कैसे डाला गया आग में? उन्हें गालिबन किसी मंजनीक वगैरह से दूर से फेंका गया होगा, लेकिन जैसे ही वो आग के करीब पहुंचे या उसमें दाखिल हुए, जी, वहीं अल्लाह ताला का हुक्म आ गया। कुरान पाक में भी जिक्र है, सूरतुल अनबिया में मफहूम है कि ए आग, इब्राहिम पर ठंडी और सरापा सलामती वाली हो जा। कुलना या नारु कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिमा। बिल्कुल, जरिया कहता है कि अल्लाह के इस हुक्म के साथ ही वो दहकती हुई आग फौरन एक बाग की तरह बन गई, ठंडी और सलामती वाली। सुभान अल्लाह। और हजरत इब्राहिम ने खुद क्या महसूस किया इस आग के अंदर? जरिया इस पर कुछ रोशनी डालता है? जी, जरिया उनका एक कौल नकल करता है जिसका मफहूम कुछ यूं है कि जितने दिन मैं आग में रहा वो मेरी जिंदगी के बेहतरीन दिन थे। अल्लाह के खास फजलो रहमत में था और ऐसा सुकून मिला जो पहले कभी नहीं मिला था। यानी आग उनके लिए अजाब नहीं, रहमत बन गई थी। जी, कुछ रिवायात कहती हैं वो कई दिन उस आग में रहे और फिर बिल्कुल महफूज जिंदा सलामत बाहर तशरीफ लाए। ये तो एक खुला सरिया मौजज़ा था। नमरूद और उसकी कौम ने जब ये देखा तो उन पर क्या असर हुआ? ईमान ले आए? जरिया कहता है कि नमरूद और उसकी सारी कौम ये देखकर हैरान रह गई, बिल्कुल सकते में आ गई। जाहिर है। लेकिन उनके दिल इतने सख्त हो चुके थे, कुफ्र इतना रासिख हो चुका था कि इतनी बड़ी निशानी देखने के बावजूद वो ईमान नहीं लाए, अपनी गुमराही पर कायम रहे। कमाल है, यानी इतना बड़ा मौजज़ा भी उनके इनकार को ख़त्म नहीं कर सका। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो अपनी दावत जारी रखी होगी। जी, वो तो अल्लाह के नबी थे, उन्होंने हक की दावत जारी रखी। इसी दौरान फिर वो मशहूर मुनाजरा हुआ नमरूद के साथ। अच्छा, वो मुनाजरा जिसका जिक्र कुरान में भी है? जी हाँ, नमरूद ने हज़रत इब्राहीम को बुलाया और फिर अपना वो खुदाई का दावा दोहराया और पूछा कि भाई आखिर तुम्हारा रब कौन है जिसकी तरफ तुम बुलाते हो, मुझे बताओ तो सही। हज़रत इब्राहीम ने क्या जवाब दिया इस दलील के मुताबिक? उन्होंने बहुत वाज़ेह जवाब दिया। फरमाया, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत। बिल्कुल। इस पर निमरूद, जरिया कहता है, बड़े तकब्बुर से हंसा, बोला, अरे ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। और फिर उसने वो कैदियों वाला काम किया? जी, उसने 2 कैदी मंगवाए। दोनों को सजाए मौत सुनाई जा चुकी थी। एक को उसने अपने सामने कत्ल करवा दिया और दूसरे को कहा, जाओ तुम आजाद हो। और फिर बड़े फख्र से कहा होगा कि देखो मैंने एक को मौत दी, एक को जिंदगी। जी हाँ, ये एक तरह से दलील का जवाब ताकत से देने की कोशिश थी। बहुत भूंडा मुजाहरा था। हजरत इब्राहीम ने उस पर क्या कहा? यहाँ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो बात की जिसने निमरूद की सारी दलील की इमारत ही गिरा दी। उन्होंने फरमाया, अच्छा चलो ये छोड़ो, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तू वाकई खुदा है तो जरा उसे मगरिब से निकाल कर दिखा दे। फ़इन्नल्लाह यअती बिश्शम्स मिनल मशरिक़ फ़अती बिहा मिनल मग़रिब। बिल्कुल, ये वो सवाल था जिसका जवाब निमरूद के पास हो ही नहीं सकता था। तो क्या हुआ उसका? जरिया क्या बताता है? जरिया कहता है कि ये सुनकर निमरूद का रंग उड़ गया, वो बिल्कुल खामोश साकित हो गया, कोई जवाब नहीं बन पड़ा और अपनी ही भरी मजलिस में वो जलील और रुस्वा हो गया। फ़बोहितल्लज़ी कफ़र, यानी जो काफिर था वो मबहूत रह गया, वाज़े शिकस्त हो गई उसकी। धी इल्मी तौर पर दलील के मैदान में शिकस्त फाश। लेकिन इस जिल्लत के बाद भी वो बाज नहीं आया होगा। तकब्बुर तो शायद और बढ़ गया था कि उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वो क्या था? उसने माज़अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को, कायनात के खालिक को जंग का चैलेंज दे दिया। अल्लाह को चैलेंज? जंग के लिए? जी, उसने हजरत इब्राहीम से कहा, अगर तुम्हारा खुदा वाकई कोई ताकत रखता है तो उससे कहो अपनी फौज भेजे और आकर मेरा मुकाबला करे। ये तकब्बुर की वो इंतहा थी कि अल-अमानुल हफीज। ये तो अकल से बाहर है। इस गुस्ताखी के बाद क्या हुआ? जरिया बताता है कि अल्लाह के हुक्म से फौरन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और पैगाम दिया कि अल्लाह का लश्कर तैयार है। अच्छा। हजरत इब्राहीम ने यह बात नमरूद को बताई तो निमरूद ने फौरन लड़ने के बजाय कहा, मुझे 3 दिन की मोहलत दो ताकि मैं अपनी फौज तैयार कर लूं। अच्छा, मोहलत मांगी उसने? जी,
और चूंकि वो पूरी दुनिया का बादशाह समझा जाता था, इसने उन 3 दिनों में जबरदस्त तैयारी की होगी। बिल्कुल, जरिया कहता है कि दुनिया भर से बेहतरीन जंगजू, सिपाही, बेहतरीन असलहा सब जमा कर लिया। एक बहुत बड़ी, नाकाबिल शिकस्त नजर आने वाली फौज तैयार कर ली। और 3 दिन बाद 3 दिन बाद वो बड़े तकब्बुर और गुरूर के साथ मैदान में आया और फिर अल्लाह को ललकारा। अब अल्लाह की तरफ से क्या जवाब आया? कैसी फौज आई? हजरत इब्राहिम ने दुआ की और अल्लाह ताला ने अपना लश्कर भेजा। लेकिन वो लश्कर ना इंसानों का था, ना फरिश्तों का, ना जिन्नात का। तो फिर? वो लश्कर था मच्छरों का। मच्छरों का लश्कर? जी, जरिया बताता है कि इतने मच्छर आए, इतनी तादाद में, कि उन्होंने आसमान को ढांप लिया। दिन के वक्त अंधेरा छा गया। अल्लाहु अकबर। फिर अल्लाह के हुक्म से उन मच्छरों ने निमरूद की उस लाखों की फौज पर हमला कर दिया। और जरिया कहता है कि पलक झपकते में उन मच्छरों ने फौजियों का सारा गोश्त खा लिया, सारा खून पी लिया। मैदान में सिर्फ हड्डियों के ढांचे रह गए। सिर्फ हड्डियां? ये तो इंतहाई हौलनाक और इबरतनाक मंजर होगा। बहुत ज्यादा। निमरूद ने जब अपनी फौज की ये तबाही देखी तो वो शदीद खौफजदा हो गया। भाग गया होगा? जी, मैदान से भागकर सीधा अपने महल में घुस गया और दरवाजे बंद कर लिए। सोचा अब महफूज हूं। लेकिन अल्लाह का अजाब तो कहीं भी पहुंच सकता है। तो महल में क्या हुआ? जरिए एक खास वाकये का जिक्र करता है। कहता है कि इन लाखों करोड़ों मच्छरों में से एक मच्छर था जो लंगड़ा था। लंगड़ा मच्छर? जी, वो अल्लाह के हुक्म से निमरूद के महल में दाखिल हो गया। निमरूद ने उसे देखा तो अपनी बीवी से कहने लगा, देखो, ये है वो हकीर सी मखलूक जिसने मेरी इतनी बड़ी फौज को तबाह कर दिया। वो ये कह ही रहा था कि वो लंगड़ा मच्छर उड़ा और सीधा उसकी नाक के नथने से होता हुआ उसके दिमाग में घुस गया। दिमाग में? अल्लाह। जी, और वहां जाकर उसने निमरूद के दिमाग को, कहते हैं, काटना या चाटना शुरू कर दिया, जिससे निमरूद को शदीद नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ होने लगी। ओ खुदाया, वो दर्द की शिद्दत से दीवाना वार अपना सर कभी दीवारों पर मारता, कभी सतूनों पर। ये तो बहुत ही अजियतनाक सजा थी। क्या उसे किसी तरह कोई आराम मिलता था? जरिया एक बहुत अजीब बात बताता है कि उसे वक्ती तौर पर थोड़ा सुकून सिर्फ तब मिलता था जब कोई उसके सर पर जोर से जूता मारता। जूता मारने से? जी, चुनाचे उसने हुक्म जारी कर दिया कि जो भी महल में आए या उसके पास आए, वो पहले उसके सर पर जूते मारे। दुनिया का बादशाह, खुदाई का दावेदार, जूते खाने पर मजबूर हो गया। कैसी जिल्लत! यही तो इबरत है। ये जिल्लत और ये तकलीफ, जरिया कहता है, कई दिन तक जारी रही। और आखिरकार वो इसी तकलीफ में अपना सर दीवारों या शायद सलाखों पर मारते मारते हलाक हो गया। तो ये था अंजाम, निमरूद का अंजाम, जैसा कि इस क़िस्सुल औलिया के ट्रांसक्रिप्ट में बयान हुआ है। जी, पूरी दुनिया का बादशाह, खुदाई का दावेदार, अल्लाह को चैलेंज करने वाला एक हकीर लंगड़े मच्छर के हाथों ऐसी इबरतनाक मौत मरा। अगर हम इस पूरे वाक़े का खुलासा करें जो इस जरिए ने हमें बताया, तो अहम बातें क्या निकलती हैं? मुतज़लज़िल ईमान, अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कुल, फिर वो आग वाला मौजज़ा जो इतनी बड़ी निशानी थी लेकिन उसे जुटला दिया गया। हाँ। फिर मुनाजरे में नमरूद की वाज़े इल्मी शिकस्त, फिर उसका वो अहमकाना चैलेंज अल्लाह ताला को, और आखिर में वो अंजाम। और आखिर में एक इंतहाई मामूली हकीर सी मखलूक, एक मच्छर के जरिए उसकी वो जिल्लत आमेज मौत। इस जरिए से जो मरकजी पैगाम मिलता है वो क्या है? क्या सबक हासिल होता है? मेरे ख्याल में जो बात सबसे नुमाया है वो यही है कि तकब्बुर का अंजाम क्या होता है, खास तौर पर जब वो तकब्बुर अल्लाह की हाकिमियत को चैलेंज करने तक पहुंच जाए। बिल्कुल। ये कहानी बताती है कि असल ताकत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। वो जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जलील कर दे। सही। और ये कि अल्लाह ताला बड़ी से बड़ी ताकत को, बड़े से बड़े मुतकब्बिर को अपनी किसी भी मखलूक, हत्ता कि एक मामूली मच्छर से भी शिकस्त दे सकता है। जैसे जरिए में भी कहा गया है ना, बेशक अल्लाह तबारक व तआला हर चीज पर कादिर है। वाकई हर चीज पर कादिर है। ये हजारों साल पुरानी कहानी जिसे इस जरिए ने हम तक पहुंचाया, आज भी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। जी बिल्कुल। आज के दौर में भी ताकत का नशा, अकीदे की ताकत और वो कौन सी गैर मरी कुव्वतें या असूल हैं जो शायद आज भी हमारी इनफरादी और इज्तिमाई जिंदगियों पर, हमारी तकदीर पर असरअंदाज होते हों, ये वो सवालात हैं जिन पर गौर व फिक्र किया जा सकता है। यकीनन ये गौर-व-तलब पहलू हैं।